Right. So, welcome back, guys. Abhi, we are recording this episode 2 of on the book Pragmatic Programming. So, last time we discussed about the the initial concepts of the book, why you should care for your craft, what those principles are. Acha, by the way, we are also joined by a big audience this time, students from KEC. So I welcome you all. Thank you, sir. So now this time, this in this episode, I wanted to talk more about what it feels like to be a craftsman. So last time we talked about caring for your craft, but this in this time, let's talk about when you care for your craft, you're called a craftsperson, and as a craftsman, how is the day to day looks like for a craftsperson, right? The primary difference I see in my journey has been key as a normal person who is not a craftsman, और जिसको अभी तक वो realization नहीं हुआ है कि what it means to care for your craft. So that person working on any specific task, let's say, when they get it, they just feel like this is a task and I need to finish it. So the focus is entirely on how it can be done. The task is in hand. Yeah, but when I think myself as a craftsperson, and the differences I see in my mindset is that in addition to how it will work, or does it work, I also think about important things like whether it will sustain the changes the product will have after 6 months, or will it not break after a specific time. What happens if something in a different module changes? Will it break this code or not? So I think these are some important things as a craftsperson you also start thinking in addition to just focusing on fixing the problem in hand, right? Now this book talks about very important concept. I think एक शायद फर्स्ट या सेकंड पेज में ही है. There's a heading called "The Cat Ate My Source Code." This is actually a very interesting story. So first of all, this concept talks about don't make lame excuses. So you cannot say to anyone that मेरा कोड तो बिल्ली खा गई है ना. Like this, when we talk about taking ownership for your work and taking more responsibility, that's where this lame excuses comes in. Laptop bag, yeah. So there's a very interesting story. So one time what happened was a new client, or someone we knew, they came running to us, running in the sense ki, with lot of urgency. And I'm not sure, Poki, you were in Kaladko at the time, but you must have heard this story. So when that person came running in, and it was an email at 11 p.m. in the night, somehow I was up and I saw that email, and उससे लगा कि this person is very like under a lot of pressure, lot of tension, and he was building a software product, और कुछ time पहले looked like some crisis had happened. So the next day we went on a call with him, and he said कि यार मेरा project गायब हो गया. And थोड़ा सा और हमने डिटेल्स निकाली तो पता चला कि he was working with some Kerala based company, or some unknown software firm, कुछ ऐसे freelancer model type से लगा था. And what those developers said to him was कि हमारे यहाँ बाढ़ आ गई और हमारे लैपटॉप पानी में बह गए. So the project is gone. So that I'm not sure whether that is truth or कुछ और reason था. हम लोग सोच रहे थे कि इन्होंने बिल्कुल basic GitHub क्यों नहीं यूज़ करा, कहीं और project होता. What kind of practices they were following, but that felt like a lame excuse कि मेरा लैपटॉप पानी में बह गया और आपका प्रोजेक्ट भी पानी में बह गया. So it connected to me with this the cat ate my source code concept. So talking about lame excuses, and this book talks about specifically don't give lame excuses, give options. So let's talk more about if we have encountered this type of situation in our projects or not, and what happens when we
kind of face an impossible situation where we see a lot of constraints, difficulties, challenges, and instead of giving an excuse or just saying that no, it's not possible, uh, what kind of options have we come with? Or we'll cover with some real life examples, maybe starting with Pokey. Do you have any specific example around it? I think one that comes to my mind, it's related, it's not a very coding example, but it's related to a big project. It was it was a kind of a government project, and we were trying very hard to get into that. And what happens in government project is there is they release those RFPs. They have their own portal, and we have to check them out and see, uh, and we have to apply. We have to bid for it like a tender, and the difference in government project generally from the other projects is the requirements are very uh, there are pre-requirements, like you need to have certain turnover, you need to have uh, these many employees in your company, and so on and so forth. So there was this big project, and we gathered around it, and we saw uh, that we tried to calculate कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं, and what turned out to be कि हम वहाँ पास ही नहीं हो पा रहे थे. एंड इट कुड हैव हैपेंड कि हम वहीं पे वो एक्सक्यूज़ देते कि यार हमारे पास बंदे ही नहीं है, हम वी कैन नॉट गेट इन टू दिस प्रोजेक्ट. सो वी वर वेरी क्लोज टू इट, बट देन वी थॉट कि व्हाट कैन बी डन. हम यहाँ तक पहुँचे, वी वॉन्ट टू डू दिस प्रोजेक्ट, वी नो वी कैन डू दिस प्रोजेक्ट, बट इनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है. सो वी काइंड ऑफ लुकड इन टू इट. हमारे क्लाइंट भी था जो जुड़ा हुआ था, और हमने कभी उनके साथ कि एक दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो एक दूसरी टीम भी इन्वॉल्व थी. सो वी काइंड ऑफ कम अप विद द प्लान कि आप उनको ले आओ जो दूसरी टीम है, और हम उनके साथ पार्टनर कर सकते हैं. एंड वी जस्ट फाइंड आउट कि RFP में कंसोर्टियम एक का भी प्रोविज़न है, यानी कि ज़रूरी नहीं आपको अकेले आना है, दो कंपनियां मिलके भी कर सकती है. सो वी वर दिस क्लोज टू गिविंग अप ऑन दैट प्रोजेक्ट, एंड जस्ट बिकॉज वी डिडेंट वांटेड टू स्टॉप कि यार हम तो है ही नहीं, हमारे पास 50 एम्प्लॉई नहीं है, हम तो ये प्रोजेक्ट में आ ही नहीं सकते. वी सेड कि हम कैसे आ सकते हैं इसमें. एंड व्हेन वी थॉट अबाउट इट, वी केम अप विद दैट, वी रेड द RFP अगेन कि क्या है हमारे लिए, कैसे कर सकते हैं. एंड वी फाइनली we are in that project. We have now delivered that project. It got launched last month also. So I think that is one case that comes to my mind. Like very recently, I have a similar example जहाँ पे we were doing a lot of back and forth with one of the new prospect जिनके साथ हम project onboard करने की कोशिश कर रहे थे. They are also because of some budget constraints, or like they had a limited amount to spend. So they had this specific feature कि जहाँ पे they in their workflow, in their proposed workflow, जहाँ पे उनको कुछ digital signatures करवाने थे उस एक flow में. And those digital signatures ultimately had to be following some specific policies implemented by the local government there. और उसका एक प्रोसेस होता है, विच मीन्स कि हमें गवर्नमेंट की कुछ स्पेसिफिक API से इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू इंश्योर कि द डिजिटल सिग्नेचर्स आर वैलिड एंड एज पर कंप्लायंस बाय द लोकल गवर्नमेंट. बट देन एंड दैट मॉड्यूल वॉज when we estimated and when we budgeted it, it was very big effort, significantly going out of the total budget was going out. Then we did some back and forth and ultimately figured कि यार because this product or this target for phase 1 is just to build an MVP so that we can test the feasibility of this solution, the entire solution in the market. So why don't we build a simple signature flow where the user, instead of going all that API integration, complex signature workflow, digital signature workflow, we just
ask the user to give them a trackpad or very simple pad on their screen where they can, if they are using phone or iPad, they can just do simple signature, or if they are on desktop, like some utility through their mouse, they can either upload a signature or digitally sign it in the screen, and we save it as a reference in our database, which in a later phase we can then integrate it with the government compliance app that they had. So when we discussed this and estimated this, it came out to be around 20% of the actual module or the actual effort that we had estimated for the formal signature workflow. So I think that highlights that when you are going after the problem and trying to make it happen, like there are always excuses. It was easy to say कि नहीं होगा और आपको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे. It was much easier, and they appreciated us even more that we came up with this solution. It was not just our idea, like they also collaborated, and now we are officially kicking off the project. So that felt like a win also. हाँ, और हमेशा ही होता है, मतलब सो मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट आर नॉट टेक्निकल, और जैसे मैं जिस प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ उसके जो ओनर हैं वो बाकी लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं. अब जैसे ही वहाँ से कंफर्मेशन आता है कि ठीक है आप ये बना दो, तो उनके पास वो मेरे पास आता है, पहला वही होता है कि यार मुझे फ्राइडे तक चाहिए, आप ये रिलीज़ कर सकते हो क्या. और क्योंकि वो टेक्निकल नहीं है, मैं उनको बता सकता हूँ कि यार इसमें 50 घंटे लगेंगे या 100 घंटे लगेंगे, ये फ्राइडे तक नहीं हो सकता, और आप उनको मना कर दो. तो ये सारे एक्सक्यूजेस हमेशा ही दे सकते हैं हम लोग. आफ्टर रीडिंग दिस बुक और दैट कल्चर वी हैव, जो हम लोग अप्लाई करते हैं, जो मैं इसमें अप्लाई करता हूँ कि यार फ्राइडे तक पूरा फीचर रिलीज़ नहीं कर सकते, बट क्योंकि वहाँ से कंफर्मेशन आ गया एंड दे आर रेडी टू यूज़, तो हम लोग इतना पीस शिप कर सकते हैं. सो लेट्स से कि अगर कोई इंपोर्ट मॉड्यूल ही है कि मुझे कुछ बल्क में डेटा इंपोर्ट करना है, और उन्होंने कहा कि यार मुझे सारी फाइल्स इंपोर्ट करनी है, मेरा पूरा फ्लीट इंपोर्ट कर पाएगा डेटा, और मैं वो फ्राइडे तक नहीं रिलीज़ कर सकता. बट वट आई कैन डू कि यार अभी मैं आपको एक फॉर्मेट दे सकता हूँ कि आप इसमें अपना डेटा इंपोर्ट करना शुरू करो. उसमें मैं आपको एक ही फाइल अलाउ करूँगा कि CSV होगा, उसमें भी जो वैलिडेशन होंगी वो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल वैलिडेशन है वो दूंगा, बाकी आप मैनुअली करोगे टिल फ्राइडे. और इतना हम लोग रिलीज़ कर सकते हैं. उसके बाद आप धीरे धीरे हम लोग सिस्टम को और एक्सटेंडेबल बनाएंगे, फ्लेक्सिबल बनाएंगे, और तब तक आप वो मैनुअली कर रहे हो. तो धीरे धीरे जब आपका क्लाइंट यूज़ करने लगता है सिस्टम, और वो कुछ मैनुअल कर रहा है, कुछ आपका स्टार्ट करना शुरू कर रहा है, तो उसके पास और फीडबैक आते हैं कि ठीक है इसमें ये भी डाल दो. और जब आप बैक एंड में जब आप और फ्लेक्सिबिलिटी डाल रहे होते हो सिस्टम में, तो जो उनका मैनुअल काम था वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है. सो नॉर्मली क्लाइंट गेट्स बेटर फीलिंग आफ्टर दैट. इवन अगर मैं उनको 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद सीधे एक फीचर रिलीज़ करूँगा, तो मुझे इसके फ़ायदे दोनों तरफ से दिखते हैं कि यार एक्सक्यूज़ ना बना के आप जितनी जल्दी शिप कर सकते हो, जितना जल्दी कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर होता है. एंड इट्स नॉट अबाउट ओवर कमिटिंग एंड सेइंग यस कि मैं फ्राइडे तक कर दूंगा. एग्जैक्टली, राइट, दैट्स अ सुपरमैन और ही मैन थ्योरी. इट्स बेटर कि वी गिव, like we provide what is possible, what is feasible, and if we are over committing, what are the risks involved in shipping, because we might be cutting some corners to make it happen till Friday. हाँ, अगर मुझे फ्राइडे तक करना है, अगर मैं 24 घंटे भी काम करूँगा, तो भी there will be more bugs, there will be more issues with the system. Yeah. So if they are ready with that, so If then that we can do risks that. can be taken on, then it makes sense for them. Yeah, and they appreciate this kind of gesture even more. Yeah, nobody likes that. Rather than फ्राइडे को रात को 11 बजे ये मैसेज आ रहा है उनको कि नहीं हो पाएगा. Yeah, that's great. So there's one more concept. I won't reveal the name, but let me share an example and let's see that if you are able to debunk it. So एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ. एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे हम लोग एक ईमेल्स काफ़ी चीज़ों के लिए भेजते हैं, अभी भी भेजते हैं, बट व्हेन वी स्टार्ट आवर जर्नी वी मस्ट हैव कम थ्रू दैट SMTP वाला है ना, कि SMTP के थ्रू ईमेल जाएंगे, एंड बाय द डिफैक्टो मेथड इज़ यूजिंग Gmail SMTP.
राइट. एंड आई थिंक जिसने भी Gmail SMTP यूज़ करा है, वी ऑल नो कि उसमें पर डे आई थिंक देयर इज अ लिमिट ऑफ Yes. 2000 ईमेल्स, कि आप 2000 ईमेल से ज़्यादा नहीं भेज सकते पर डे. सो दैट प्रोजेक्ट वाज यूजिंग Gmail SMTP फॉर very long, and it was sending emails for various purposes. जैसे अगर कोई यूज़र लॉगिन करता है तो उसको OTP आएगा, वो ईमेल से आएगा. कोई यूज़र फॉरगॉट पासवर्ड करता है, दैट इज़ ऑल्सो वन ईमेल. देन द सिस्टम ऑल्सो सेंड्स आउट इवेंट्स, नोटिफिकेशंस. कुछ नोटिफिकेशंस बिल्कुल बल्क में जाते हैं या बर्स्ट होते हैं, एंड मे बी देर आर सम यूज़र एक्शन बेस्ड या कुछ क्रॉन बेस्ड emails जाते हैं. So what happened, one fine day everything was working fine and suddenly the emails didn't stopped coming. So when we debugged it कि क्या हुआ, we figured कि client ने अपने platform में एक mass email कर दिया, and that mass email went to was scheduled for 50,000 users, जितने भी system में users थे, and the limit was just 2,000. So it looks like very small problem, but the problem when we identified what the problem was कि वो OTP भी नहीं आ रहे थे. तो जिनको लॉगिन करना था, ईमेल तो छोड़ो, जिनको लॉगिन करना था, जिनको सिस्टम यूज़ करना था, वो भी अपना सिस्टम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. सो देन वी फिगर्ड कि यार क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. वी अल्टीमेटली मूव टू द Amazon SES because it had much larger capacity per day limit also. नाउ व्हेन आफ्टर वी इम्प्लीमेंटेड कि यार OTP हो गया फिक्स, अब ईमेल्स आ रहे हैं बढ़िया से, तो 10 दिन के बाद फिर से वो फट जाता है ना. तो वहाँ पे रीज़न क्या है कि जो हमने कुछ मॉड्यूल या जो भी ईमेल कॉन्फ़िग चेंज करे थे, हमने सिर्फ OTP में चेंज करे थे, हमने वो मास ईमेल में चेंज नहीं करे थे. तो अब OTP तो हमने फिक्स कर दिया, उसकी वजह से मास ईमेल जो सही चलना चाहिए था वो फटने लग गया. देन वी फिगर्ड कि यार अब इसमें भी हमें कुछ करना पड़ेगा, एक कॉमन मॉड्यूल बना के उसको ईमेल को ऐसे मॉड्यूल बनाना पड़ेगा सो दैट इट गेट्स इजीली रिप्लेस्ड एंड इट वर्क्स एज एन इंडिपेंडेंट मॉड्यूल. कैन यू गेस what problem I'm talking about? Yeah, I mean, book clearly defines that. It's orthogonality. So जब आप सिस्टम में कुछ एक चीज़ चेंज करते हो तो दूसरी पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए. आपका सिस्टम हमेशा इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए. So it's a very good thing to have in your project. और मुझे नहीं लगता इसके बिना आप स्केल कर सकते हो. और हाँ, मुझे लग रहा है अभी क्योंकि ऑर्थोगोनैलिटी की बात चल रही है तो मुझे भी इंसिडेंट याद आ रहा है कि अभी रिसेंटली मैं एक US प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और इससे हेल्थ केयर प्रोजेक्ट तो काफ़ी क्रिटिकल है. वहाँ पे एक फीचर है कि हम लोग को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म डिज़ाइन करना है जिसमें पेशेंट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जाती है और उसका बाकी अभी तक कितना पूरा हिस्ट्री में क्या क्या मेडिकल हिस्ट्री है उसकी, कितनी बार उसको डॉक्टर ने देखा है, क्या क्या मेडिकल है ना. तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो. वहाँ पर हमारे पास एक फीचर था मेरे पास ऑटो सेव का कि वो फॉर्म जब यूज़र फिल कर रहा है मुझे सबमिट नहीं प्रेस करना बार बार, वो ऑटो सेव होना चाहिए. तो क्योंकि अब मेरे पास एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत मुझे बुक का पता है, तो जब मैं उसको आर्किटेक्ट कर रहा था, जब मैं डिज़ाइन कर रहा था, तो मैंने वो कोड कम से कम 3 या 4 बार लिखा और उसको स्क्रैप करा. और जो मेरी इनिशियल टाइमलाइन थी उसको भी एक्सटेंड करा, मतलब वो डेडलाइन मिस हुई. बट फिर वो कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ कि यार ये क्यों करा मैंने और किस लिए, क्योंकि बिकॉज आई वॉज नॉट हैप्पी और मुझे पता था कि सिस्टम में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं. तो वो हुआ रिलीज़, वो फीचर रिलीज़ हुआ और यूज़ होना स्टार्ट हुआ. बट उसका जो मुझे अभी तक फ़ायदा मिल रहा है कि अब वो इतना फ्लेक्सिबल है कि जितनी भी मेरे पास नई रिक्वायरमेंट आती हैं और जो भी मेरे पास यूज़र डिफरेंट तरीके से यूज़ करना चाहता है, जैसे वो 50,000 वाला एग्जाम्पल है, तो कम से कम वो कोड एग्जिस्ट करता है, वो कोड ब्रेक नहीं करता. वो सिस्टम अलाउ करता है कि आप ये फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम में डाल सकते हो. तो मैं कई बार अभी भी सोचता हूँ कि यार अगर मैंने वो सिर्फ डेडलाइन के चक्कर में पहली बार ही मतलब शिप कर दिया होता क्योंकि वो चल तो रहा ही था, तो अभी मैं कैसे मैनेज करता. तो ये कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद है इस बुक में. So writing sort of modular independent blocks of software. There are multiple names, so separate of concerns and code by contract. और
yeah, these books tell about in multiple Microservices sections. architecture is essentially that, right? Like, but Exactly, at a yeah. different scale. But microservices are something that, you know, they work independently, but you can very easily replace them. Yes, and yeah, they are single responsibility principle also. So But one thing is very interesting here. Ki, maybe Poki, you can answer. Ki now, you know, with the in the age of AI, अब तो ये डिज़ाइन पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने या इम्प्लीमेंट करने लाइक शुड बी रिलेटिवली इजी, नो? लाइक आई नो दैट यू आर अ वेरी हैवी यूजर ऑफ ChatGPT. So what do you think about it? Can these problems be avoided easily now? So I think when I do it with ChatGPT, the main thing is जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम है ChatGPT उस पर फोकस करके उस पर बेस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है. सो द थिंग विद ऑर्थोगोनलिटी इज कि आपको पूरा सिस्टम पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पाइपलाइन, अगर आपने लेट से आप एक AI पाइपलाइन बना रहे हो, उसमें 5 स्टेजेस है और आपने किसी एक स्टेज का क्वेश्चन पूछ दिया, फॉर एग्जांपल कि एक PDF से आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो उसका बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकता है. बट वो आगे आप किस तरीके से उसे डिज़ाइन कर रहे हो उसको उसकी नॉलेज ही नहीं है. तो वहाँ पर वो आपको और ऑप्शंस देगा कि इसको ऐसे कर दो, इसको और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप ये लाइब्रेरी और डाल सकते हो. बट पूरी पाइपलाइन की क्योंकि उसे पता ही नहीं है, तो इट विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज इन अ सिंगल वे. और आगे आप उसको कैसे मॉड्यूलर बना सकते हो, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन यू. सो इट नीड्स योर प्रॉम्प्ट टू अंडरस्टैंड कि आपकी पाइपलाइन में लेट से नेक्स्ट स्टेज क्या है. जब तक आप उसे वो नहीं बताओगे तो हो सकता है वो आपको फाइनल आंसर ही दे दे वहाँ पर. बट हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेज में आपको चंकिंग करनी है, ब्रेक करना है उसे, तो आप उसे बोलोगे कि इसको मुझे इतना ही आउटपुट चाहिए, उसके बाद वो रिफाइन होगा. तो आई थिंक AI को वो जो कॉन्टेक्स्ट चाहिए आपके पूरे सिस्टम देखने का, वो प्रोवाइड करने के लिए आपको एडिशनल एफर्ट डालना पड़ेगा. वो कॉन्टेक्स्ट आपके दिमाग में है. So if we are looking for shortcuts, or like I said कि शुरू में कि as a normal or a junior developer, or you know, someone who is just getting started or don't realize KF craft, if when they are using AI, they're just trying to do a local fix, and Yes. their prompt to ChatGPT or any AI tool is just tell me how to do this. AI does it and copy paste it, and it works. Yes, But then it breaks something else, like that email thing I shared or कुछ और. yes. And I think that is why actually जो AI makers हैं, they are also competing because of this context thing only, right? कि अभी कुछ आया भी था, some Chinese LLM which like outperformed ChatGPT and maybe Claude also, because it had a capacity to handle bigger context. हाँ, वैसे अब धीरे धीरे तो ऑब्वियसली मैच्योर हो ही रहे हैं एजेंट सिस्टम्स. जो एजेंटिक AI आया है वो कंटेक्स्ट और ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है. बट जो पोकी की बात से मुझे भी कि जब तक आपको नहीं पता वो रूल्स, AI, अगर आप AI लेड डेवलपमेंट कर रहे हो कि आपका डेवलपमेंट AI लीड कर रहा है, तो आप इस ट्रैप में फंसोगे. सो आपको वो नॉलेज तो रखनी पड़ेगी कि मेरा सिस्टम कैसे डिज़ाइन हो रहा है, मेरा कहाँ पर क्या कंटेक्स्ट सेट हो रहा है. आप AI को नहीं दे सकते सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक. Talking about orthogonality, do you have any example where you didn't apply it, or you forgot, or you know, for any reason, like you saw that was missing, and how it impacted that software or that experience for you? हाँ, बहुत सारे, मतलब बहुत तो सारा है. काफ़ी I remember especially there was this I think survey tool that you were building, and अभी जैसे मैं आज भी नाम लेता हूँ तो थोड़ा सा पंकज को डर लगता है उस सॉफ्टवेयर का नाम सुन के. हाँ भाई, क्योंकि जब आप मिस करते हो ऑर्थोगोनैलिटी, इसीलिए मैंने कहा कि वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो. क्योंकि मैं जब कलड़काओं में आया था, अभी तो मुझे पता है स्टार्टिंग में, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट आया और मुझे वो डिज़ाइन करना था. और समहाउ हुआ क्या कि मैंने उसमें कुछ शॉर्टकट लिए, मैंने अपनी वो प्रॉपर रिसर्च नहीं करी या ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, और तो मुझे जो भी रिक्वायरमेंट आ रही थी मैं बस उन्हें कोड में कन्वर्ट कर रहा था, तो सब कुछ सही चल रहा था. जब मैंने यूज़र को डेमो दिया तो भी सब कुछ सही था, यूज़र ने यूज़ करना स्टार्ट किया तो भी सही था.
जैसे ही पब्लिक हुआ उसके बाद जो जो यूज़ केस आए, तो फिर अब एक बग आया, मैंने एक फिक्स करा तो 2 बग आते हैं, फिर फिक्स करा, फिर वो, ये मतलब हो गए 7-8 साल पुरानी बात है, लेकिन मतलब वो फिर एक नाइटमेयर बन जाता है, क्योंकि जब आप ऐसा कुछ छोड़ते हो तो वो आप एक लोन की तरह हो जाता है जिसका इंटरेस्ट आप पे लगता ही रहता है, लगता ही रहता है। आपके पास एक इशू आया फिक्स करने का, आपने उसका एस्टीमेट दिया, बट आपको पता चला 3 इशू और ब्रेक हो गए, तो आपके एस्टीमेट मिस हो रहे हैं, उसके लिए फिर आप और काम कर रहे हो, फिर वो मिस हो रहा है, फिर आप रात को जग रहे हो, फिर आप रात को you're जग looking रहे at हो। your code editor at 12 a.m. in the night, which is even more dangerous. और हाँ, क्योंकि रात को काम कर रहे हो तो और बग्स आएंगे। तो वो एक बहुत ही मेरी उसमें इवेंचुअली मैंने क्लाइंट को बोला और फिर हमने वो स्क्रैप करा, फिर दोबारा लिखा So you had to scrap the entire code. प्रोजेक्ट, और फिर हमें वो दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ा। How much time did it take you to recreate it और पूरा scratch से वापस बनाने में? 3 to 4 months। And how long was the original project जो scrap करा? वो भी मुझे ऐसे ही लगता है 6 to 7 months का था, तो ऑलमोस्ट मतलब वो एफर्ट वेस्ट ही था, क्योंकि देयर वाज नो वे टू गोइंग बैक और कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो दैट सर्वे टूल वाज वन ऑफ माय हाईलाइट ऑन दिस वन। And I think there's a slight touch of that broken window also in this, right? कि एक जगह पे हमने बस पैच वर्क करा, शॉर्टकट लगाया, तो उसकी वजह से भी मतलब there were 2 more windows that got broke because of that. हाँ, बट मुझे लगता है वो जो बेसिक जो मैं अभी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा था, और वो ब्रोकन विंडो स्टार्ट हुआ तो मुझे पता चला कि यार मैंने ये मिस किया, और उसके बाद फिर मैं जब और मिस करने लगा, जो इनिशियल आर्किटेक्चर था देयर आई मिस दिस कॉन्सेप्ट। So when you architected the new software or the new platform, like what were your considerations then? Like did I think like I know a little bit about that, the original code base. There were some hard and fixed decisions that had been made which became difficult to change later, and I think ultimately उनकी वजह से when the requirements changed, those architectural decisions were difficult because they were not made flexible enough कि बाद में change हो सकते हैं. So you are saying my guiding principle जब मैं कुछ आर्किटेक्ट करता हूँ? No, specifically talking about the next version when you build that. What mental state you had at that time in your mind कि अब मुझे ये नहीं करना गड़बड़. हाँ, मुझे जो 2-3 चीज़ थी, एक तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि यार मुझे अब ऑनेस्ट रहना है, मुझे बेसिक चीज़ें मिस नहीं करनी, पहले जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मुझे कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं लेना। ऑनेस्ट का मतलब क्या? ऑनेस्ट का मतलब कि आप कोड कर रहे हो, आपको पता है कि यार ये गलत हो सकता है फ्यूचर में, बट अभी ये काम कर रहा है, तो क्योंकि डेडलाइन मिस हो रही है मैं इसको जाने देता हूँ। सो वो भी आपको बहुत हॉन्ट करता है। तो दैट्स द वन थिंग जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि यार मैं जो करूँगा वो फिर, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस शॉर्टकट और ट्रेड ऑफ, है ना। सो वो शॉर्टकट की जगह अगर मैं ट्रेड ऑफ कर लेता हूँ कि यार मैं क्लाइंट को बता देता हूँ कि मैं ये अभी ले रहा हूँ, यहाँ पे रिस्क है, या मैं वो कमेंट अच्छे, तो मुझे जब वो पता होता है कि मैं वो रिस्क ले रहा हूँ, देन इट्स मैनेजेबल, अदरवाइज आई एम डिसऑनेस्ट विद माई वर्क। सो वो एक पहली चीज़ है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। दूसरा, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जितने मुझे पता है, या जो, तो मैं ऑब्वियस, चाहे वो ट्राई प्रिंसिपल हो, चाहे वो SRP प्रिंसिपल हो, वो सब कुछ मैं चाहता हूँ कि वो लगे, मैं वहाँ पे शॉर्टकट नहीं लेता। तो जो ऑब्वियस चीज़ें हैं जो मुझे मिस नहीं करनी चाहिए, कि मुझे कोड डुप्लीकेट नहीं करना है, वो दैट आई टेक केयर ऑफ। और तीसरा वही कि यार अब मैं जो भी कोड लिख रहा हूँ वो कम से कम रिक्वायरमेंट मुझे इतनी क्लियर हो कि आने वाले 6 मंथ्स तक कैसे, या 7 मंथ्स तक कैसे ये कोड रन करने वाला है, या क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। तो इट्स नॉट कि यार मेरा 1 महीने चलेगा, मेरा कम से कम 6 से 7 महीने तक तो चलना चाहिए सिस्टम। No, I think this reversibility thing is important because I, like in my almost 10 years of journey working in tech, I haven't seen a single project जिसमें requirement change नहीं हुई हो. हाँ, है ना. So requirements change is inevitable. वो तो होएगा ही होएगा. Once your client starts seeing the product that you have started building, even if it's very small, requirements will change. It's not कि ठप्पा लगा दिया और अब हाँ, कोई भी पहले दिन नहीं सोच सकता कि यार मेरा प्रोडक्ट ऐसे बनेगा और ये केस आएंगे। सो रिक्वायरमेंट विल डेफिनेटली चेंज। आई थिंक वो इस बुक में भी बोला गया है कि कई सारे रूल्स बने हैं,
बट जो फंडामेंटल रूल है वो इसी के ऊपर है कि थिंग्स विल चेंज. सो अगर आप ड्राई को देख लो, आप ऑर्थोगोनलिटी को देख लो, तो वो सारे इसीलिए बने हैं कि जब चेंज हो तब आपको मुश्किल ना हो कि अगर नाम भी बदलना है तो आपको 10 फाइल में जाके ना बदलना पड़े. चेंज करना है तो डेटाबेस में ही चेंज हो, आपको फिर यूआई में ना अपडेट करना पड़े. तो आई थिंक वो इस बुक में भी बताया गया कि हम इतने ज़्यादा फंडामेंटल या फैंसी रूल्स नहीं दे रहे. जो मेन रूल है वो यही है कि व्हेन थिंग्स विल चेंज आपकी लाइफ आसान रहे. Do you also consider this giving options वाला thing now when you are architecting? हाँ मतलब तो कई बार होता है कि जो पोखी ने बोला कि आप पहले से नहीं सोच सकते बट चीज़ें तो चेंज होंगी. सो मुझे अभी जो रिक्वायरमेंट पता है उसके बेस पे मेरे पास मल्टीपल चीज़ें कि यार मैं ये डिज़ाइन पैटर्न फॉलो कर सकता हूँ, इसके हिसाब से मुझे सही दिख रहा है. और दूसरा भी उसमें फिर कॉस्ट भी है, उसमें फिर वो है. तो गिविंग ऑप्शन टू द क्लाइंट और डिसाइड विद क्लाइंट इज ऑलवेज गुड. I think one like it's not related to tech but related to software ki what we also generally do is especially in the design phase because design is something सबसे पहला tangible output design ही निकलता है या wireframes निकलता है जो client देख सकता है, छू तो नहीं सकता Figma file but देख सकता है. तो वहाँ पे if because we provide options so it's easy for them also to make a decision which one would take more time, which one would take less, कौन सा उनके thought process से resonate हो रहा है solution, which one would be more costly, which one would be pocket friendly. So they get a very early idea of what would they want. I think then later in the phases of implementing in tech this is the same approach when we face a challenge. Great. I think it would be nice to know more about this mental checklist that you have, maybe through a simple like checklist if you can write or share, that will be good to know, just the mental model. सो मुझे लगता है मैंने अभी ऑलरेडी बोल ही दिया. सो वही कि यार जब आप स्टार्ट कर रहे हो बी ऑनेस्ट विद योर वर्क और बी ओपन एज मच एज यू कैन. सो आप हमेशा देखो कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने ऑप्शंस आप दे सकते हो. और जो रिक्वायरमेंट फेज है कि वो रिक्वायरमेंट विल चेंज, डेफिनेटली चेंज, बट आपको अगले 6 महीने तक का आइडिया है या साल भर तक का आइडिया है कि कैसे चेंज होगा. सो यू शुड आर्किटेक्ट और बिल्ड योर सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन दोज थिंग्स. That's great. That's otherwise वो 6 महीने का काम स्क्रैप करके 3 महीने और लगाने पड़ेंगे. तो क्लाइंट से रेपो भी खराब होती है. So we are coming to the end of this recording. One final question, maybe to Pokhi ki now you are experimenting with AI based code reviews in some projects, and I think you're also specifically focusing on putting the specific prompts to give more context about what kind of things you like to measure. So kuch wahan pe do you have any thoughts about if that process is helping with these architectural decisions or catching small slips that people make during when they raise their pull requests? आई थिंक हमने एक टूल के साथ एक्सपेरिमेंट भी करा, कोड रैबिट. सो वहाँ पर अगेन आई थिंक मेन प्रॉब्लम कम्स टू द सिस्टम अंडरस्टैंडिंग. सो जिस भी प्रोजेक्ट में वो लगा है वो जो पुल रिक्वेस्ट में फाइल्स हैं उनके हिसाब से तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस दे सकता है. तो अ लॉट ऑफ द कमेंट्स आर कि यहाँ आपने एरर हैंडलिंग नहीं लगाई, यहाँ पे आपने एरर तो आ रहा है बट आपने लॉग नहीं कराया, यूज़ अ लॉग सर्विस. सो कई सारे वो जेनरिक लेवल पे it is able to give which are important which I think can be corrected at global level. but very specific things like आपने ये यहाँ पे चेंज कर दिया बट इसकी वजह से दूसरी स्क्रीन में भी आपको चेंज करना चाहिए, या how will this impact in other places, that sort of changes are we couldn't get those level of feedback from these automatic tools. Apart from that, when I say context, a lot of context comes from client meetings. So वहाँ जब आप जाते हो you realize कि client ने ये बोला था, जिसके basis पे when you are reviewing the PR as a human आप वो चीज़ें भी apply कर सकते हो वहाँ पर
कि यार ये इसने बोला था कि आगे जाके ये करने वाले हैं, तो हमें इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। लेट्स से ये तो और रोल्स भी डालेंगे, तो मैं रोल्स हार्ड कोड नहीं कर सकता सिस्टम में। थिंग्स लाइक दैट यू कैन। जो AI के कोड रिव्यू टूल को भी अभी नहीं पता। हाँ हाँ, Right. तो आई थिंक मेन थिंग इज़ द मोर कॉन्टेक्स्ट यू प्रोवाइड, द मोर customized or personalized feedback it can give. We are experimenting now. We are experimenting with Claude as well. So वहाँ पर वी आर ट्राइंग कि जो हमें इतने टाइम से समझ आया है कि मुझे पता है वर्डप्रेस में ये गलतियाँ हम करते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पर जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पेज है और उसमें मैं एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे पेजिनेशन होना चाहिए, वरना एक दिन ये लिस्ट फटेगी। 1000 होंगे, 2000 होंगे, एक दिन आएगा तो ये लिस्ट 50,000 फटेगी। तो वहीं पर हो सकता है कि पेजिनेशन आप उसी टाइम डालो, कोई भी लिस्ट अगर डाल रहे हो। डेटाबेस क्वेरी है तो जैसे लारावेल में यूज़र कोलन ऑल तो यूज़ कर ही नहीं सकते, या कोई भी मॉडल के लिए कि किसी दिन तो वो फटेगा क्योंकि वो बढ़ रहा है, तो यू नीड टू हैव सर्टेन लिमिट्स इन देयर, तो वो चीज़ें वो पकड़ सकता है। I think what you said, like he hinted slightly, or like he said, but I would like to, say it in different way. When we first started, we talked about being a craftsperson and why it's important for them to, also not just figure out how things work, but how it will not break in future. Yes. And that is only possible when you are in control or aware 100% about the requirements or the problem that you're going to solve. Yes. Right? So that knowledge or being a craft person is probably easy when you have that context of what your client would need and what are the areas or risks that can change, and the requirements which would change, because you have more control on the problem. Yes, I think the human experience also comes into play. So a recent example, we had to implement payment gateway, and even the client was not sure. We suggested them, let's go with Razorpay. So it could be very easy for us to just implement Razorpay where the file names are Razorpay payment, but we know that अभी Razorpay finalize नहीं हुआ है, ये end में बदल भी सकता है, Paytm आ सकता है, कुछ और आ Paytm आ सकता है, और तो वी इम्प्लीमेंटेड इट कि Razorpay कहीं नहीं होगा, पेमेंट गेटवे हैंडलर होगा, और उसके अंदर आप अगर Razorpay चाहिए तो Razorpay की फ़ाइल डलेगी, अगर कल कोई कुछ और मांगते हैं तो उसकी एक अलग फ़ाइल बनेगी, और ये बस हुक होगा। ऑर्थोगोनलिटी का भी कॉन्सेप्ट है। एंड आई थिंक वी वर वेरी क्लोज कि हम लॉन्च के पास पहुंच रहे थे, एंड देवर सेइंग कि Razorpay हमारी बात नहीं मान रहा, हमें दूसरे ऑप्शन Deal करने पड़ेंगे। तो आई थिंक और कोई सिचुएशन होती तो हम थोड़े पसीने निकलते वहाँ पे कि यार अब एंड टाइम पे दूसरा पेमेंट गेटवे कहाँ से लाएं, बट अब पता था कि यार ये 4 API हैं, इसकी एक फ़ाइल बनेगी, ये इस पे इम्प्लीमेंट होगी, हम कर देंगे। सो वी वर नॉट अफ्रेड इन दैट सिचुएशन। That's a very मुझे good लगता है बस जो अभी फ़ायदा है AI टूल के रिव्यू का कि जो बेसिक चेक्स हैं एटलीस्ट वो चेक में है, वो मुझे एज ए रिव्यूअर बार बार चेक नहीं करना कि आपने कोई N+1 प्रॉब्लम तो नहीं छोड़ी। Yes. वहाँ पे वो चल जाता है, बट आप स्केल कैसे करोगे, या फिर ये Razorpay वाला कि डिज़ाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ। Yes. तो फिर मैं उन चीज़ों पे फोकस कर सकता हूँ एज ए ह्यूमन कि यार मेरा कंटेक्ट सही से सेट है, मेरी रिक्वायरमेंट सही से फाइनलाइज हो रही है फॉर दिस फीचर। That's good. I think thanks for sharing so much insights from the project, and I'm sure कि you must have gotten some goosebumps also thinking about and talking about some of the bad experiences that you had in the past. So yeah, I think orthogonality, reversibility, care for a craft, being a craftsperson, these are all like very important topics in how you become a the right kind of professional. So I'm excited about what we discussed, and especially what we are going to discuss next. I think in the next episode we're going to talk about Dry, which is one of my favorites from this book. And मुझे तो जहाँ पे भी whenever I'm reviewing, I put that comment, just I write Dry, and that I consider as a feedback. And I think we did discuss about Tracer Bullets in the first, but that is also one of my favorites. So I would like we discuss that again in the in the next episode. So thanks for your question,
all the things you shared. To the audience, finally, if anyone have any specific questions or किसी को कुछ लगा कि उनके साथ भी same experiences हुए हैं what we shared. सो देखिए ऑर्थोगैलिटी के वहाँ पर था कि जैसे मैंने एक बार एक मॉडल बनाया था एमएल पे, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें मेरा जो पाइथन का मेन वर्जन था वो डिफरेंट, वो दिक्कत दे रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार इसको एक वर्जन डाउन करके देखता हूँ। तो मैंने वो वर्जन डाउन करा, मैंने गलतियाँ करी, मैंने एनवायरनमेंट नहीं बनाई, मतलब ये पूरा मैंने ग्लोबल वर्जन में चेंज करा मैंने। तो उसकी वजह से मेरा एक मॉडल तो काम कर गया, उसके अलावा जो मेरे और दूसरे मॉडल बने हुए थे सब में किसी में, मतलब मेरे को उस टाइम पे समझ नहीं आया दिक्कत क्या हो रही है। सब में बोल रही है चल नहीं रहे, कंपैटिबल नहीं है। मैं फिर बहुत, मतलब मैंने चैट जीपीटी करा, फिर पता चला कि मेन वर्जन चेंज करना है। फिर उसके बाद मैंने ENV बनाई। अब ENV मेरे को ये नहीं पता था कि फिर मेरे को सारी की सारी फिर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैंने सबसे पाइथन को ENV में डाला, बाकी डाली, फिर रन करा, फिर वो वाली प्रॉब्लम देने लग गया कि अब इसमें ये आपके मॉड्यूल्स हैं नहीं, फिर वो मॉड्यूल्स इंस्टॉल करे। तो तब हुआ कि मतलब एक चीज़ चेंज करने से सब खराब हो सकते हैं, सब चेंज करने चक्कर में। तो ये चीज़ वहाँ पे मैंने if the structure would have been right तो वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम फटती, सारी प्रॉब्लम्स एस्केलेट नहीं होती. No, I think that is a good example. I think Docker is also like built specifically for that. हाँ, for two reasons. हाँ. एक तो वो जो लेम एक्सक्यूज वाला था हाँ. कि मेरे सिस्टम पे चल रहा है, मैं प्रोडक्शन पे नहीं चल रहा, बट हाँ, दिस इज आल्सो वन Yeah. ऑफ Containerization and कि सब कुछ एक जगह पे होना चाहिए. That's good. Anything else, anybody? Before we wrap up. Nothing else. So, thanks for joining us, and I think we hope to see you soon again in the next episodes, and yeah, we'll have more discussions around what works and what do not work in software. Yeah. All right. Thank you. Thank you, Boki. Thank you, Pankaj. Thank you. Thank you, Vaibhav.